क्या हो गया था लास्ट टाइम? व्हाट वाज द लास्ट थिंग दैट वी डिस्कस्ड? कॉम्प्लेक्स स्लोप। ठीक है, तो आई जस्ट इंट्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स स्लोप ना, जहां तक याद आ रहा है मुझे कि लाइन जॉइनिंग Z1 एंड Z2 का कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होता है? Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 बार माइनस Z1 बार, राइट? दैट वाज द लास्ट थिंग वी डिस्कस्ड। एंड ये बताया था इफ tan थीटा इज द एक्चुअल स्लोप ऑफ द लाइन then the complex slope is given by cis2 theta। बता दे ये भी। चलो let's continue from here। एंगल बिटवीन लाइंस, ठीक है? एंगल बिटवीन लाइंस क्या है? जैसे मान लो देयर आर टू लाइंस, एक L1 है और एक L2 है, इसका अल्फा इसका बीटा है, तो ये हो गया थीटा, ठीक है? तो थीटा इज गिवन बाय अल्फा माइनस बीटा। नाउ वी नो इफ द लाइन इज एट एन एंगल अल्फा, इट्स कॉम्प्लेक्स स्लोप इज एट एन एंगल 2 अल्फा ना, μ1, ये 2 अल्फा पे होगा, राइट? ऐसी सेकंड लाइन अगर बीटा पर है तो उसका कॉम्प्लेक्स स्लोप कितने पे होगा? μ2, 2 बीटा, ये 2 बीटा है, ये 2 अल्फा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल 2 थीटा हुआ कि नहीं बताओ? The angle between these two complex slopes is 2 theta, right? So from here we can conclude one thing, ध्यान से देखो, μ1 unimodular complex number, μ2 unimodular complex number, angle between them is 2 theta. So can I say if you rotate μ2 by 2 theta you will get μ1. So what is the relation between their complex slopes? μ1 is μ2 cis2 theta. Understood? If the angle between two lines is theta, then the relation between their complex slopes is μ1 is μ2 cis2 theta. Understood? जैसे अपन निकालते थे ना रियल वाले में रिलेशन निकालते थे कि एंगल बिटवीन द लाइंस इज थीटा, देन tan theta is mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. So just like that, if μ1 μ2 are the complex slopes, this is the relation. Okay? And from here we can derive the condition of lines being, if lines parallel, so you can directly put theta 0. So of course this leaves us the condition μ1 is equals to μ2. If the lines are parallel, their complex slopes are also equal. But if lines perpendicular, that implies theta is 90. If theta is 90, what is the relation? μ1 is μ2 cis pi. That implies μ1 plus μ2 is 0. Understood? So in case of real slope, m1 m2 minus 1 was the answer. m1 m2 minus 1 is the condition for two lines to be perpendicular. But complex slope के terms में answer is μ1 plus μ2 0. तो अगर इसका complex slope a है तो उसका complex slope minus a होगा if the other line is perpendicular to the given line. Understood? So this is the relation we want to remember. इसके बाद एक ये देखो, general equation of line, which is also called canonical form of line, which is the general form, just like ax plus by plus c. If you have ax plus by plus c, that is the general equation of a line. So general complex equation of a line is called canonical form. तो ध्यान से देखो, it is given as az bar plus a bar z plus b equal to 0. And in here a is supposed to be a complex number and b is supposed to be a real number. I'll explain why. देखो, any line can be written as ax plus by plus c is a line. This is a random line. Now if you want to write this line in complex form, मैंने बताया था कि real to complex कैसे convert करते हैं. X can be written as z plus z bar upon 2 and y can be written as z minus z bar upon 2 iota plus c equal to 0. This way we can write it. तो इससे क्या बन जाएगा? 2 तो उधर भेज दो, a into z plus z bar और आयोटा रेशनलाइज कर दो, माइनस b आयोटा z minus z bar plus 2c is 0. This way we can write. तो कोफिशिएंट ऑफ z क्या बन जाएगा? a minus b iota. Coefficient of z bar will be a plus b iota plus 2c equal to 0. यहाँ तक क्लियर है? Now if you put a plus b iota as some complex number a, इसको some complex number a रखते हो तो ये a बार नहीं बन गया,
तो a z बार प्लस a बार z प्लस 2c 0 दिख रहा है किसी को? सेम फॉर्म. एंड हियर 2c वाज रियल ना, तो ये b को भी रियल होना पड़ेगा यहाँ पे. ऐसे भी देख सकते हो कि a z बार प्लस a बार z इट इज सम ऑफ टू कॉन्जुगेट्स. सम ऑफ टू कॉन्जुगेट्स इज ऑलवेज अ रियल. तो ओनली रियल प्लस रियल कैन बी 0. तो b हैज टू बी रियल. अंडरस्टूड? तो दैट्स हाउ वी कम अप विद कैनोनिकल फॉर्म. तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन. ऑलराइट, समझा? ये लिखने की जरूरत नहीं है. ये अब ऐसे याद रखो कि जनरल लाइन लेना होगा तो कैसे लेंगे? a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल टू 0. अब ध्यान से देखो, जैसे अपन स्ट्रेट लाइन में निकालते थे ना कि x प्लस b बार प्लस c इज द लाइन, देन अपन क्या निकाल के रख लेते थे? स्लोप निकाल लेते थे, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाल लेते थे. याद आ रहा है? टू अंडरस्टैंड की लाइन कैसा बन रहा है. सो वी कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स लाइन. बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स लाइन यू हैव टू फिगर आउट कॉम्प्लेक्स स्लोप, यू हैव टू फिगर आउट रियल इंटरसेप्ट की जगह क्या हो जाएगा? हाँ, रियल इंटरसेप्ट हो जाएगा x इंटरसेप्ट की जगह, और y इंटरसेप्ट की जगह इमेजिनरी इंटरसेप्ट हो जाएगा. समझे मेरी बात? ठीक है. अब देखो, इसका अपन कॉम्प्लेक्स स्लोप निकालते हैं. ठीक है. सो एक काम करते हैं, कंसीडर लाइन पासिंग थ्रू z1 सम पॉइंट z1 एंड कॉम्प्लेक्स स्लोप म्यू. इसका पॉइंट दे रखा है एक और कॉम्प्लेक्स स्लोप दे रखा है, तो वी कैन डायरेक्टली राइट द इक्वेशन एज z माइनस z1 अपॉन उसका बार इज इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स स्लोप. राइट, जो कि z2 माइनस z1 अपॉन z2 बार माइनस z1 बार आता था, बट कॉम्प्लेक्स स्लोप दे दिया तो डायरेक्टली ऐसे लिख दो. सो दैट गिव्स अस z माइनस z1 इक्वल टू म्यू z बार माइनस म्यू z1 बार. तो z माइनस म्यू z बार प्लस म्यू z1 बार माइनस z1 is 0. This is the complex equation of line. Now what we want to know is कि इस लाइन की प्रॉपर्टी जानना है. तो ध्यान से देखो, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं. लेट्स से इफ दिस लाइन इज सेम एज दिस लाइन, अगर ये लाइन सेम एज दिस लाइन, तो अपन कंपेयर कर सकते हैं ना. तो कंपेयर करोगे तो क्या मिल जाएगा? a अपॉन माइनस म्यू इज इक्वल्स टू a बार अपॉन 1. सो दैट इंप्लाइज म्यू क्या बन रहा है एक्चुअली में? म्यू कम्स आउट टू बी माइनस a बाय a बार. सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ दिस गिवन लाइन, और यू कैन रिमेंबर इट एज माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ z बार अपॉन कोफिशिएंट ऑफ z. अगर म्यू निकालना है कैनोनिकल फॉर्म में दे रखा है, तो इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस a बाय a बार माइनस कोफिशिएंट ऑफ z बार अपॉन z. तो डायरेक्टली अपन कॉम्प्लेक्स स्लोप निकाल सकते हैं. ठीक है. जैसे स्लोप निकालते थे ना माइनस a बाय b, वैसे इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या हो गया? माइनस दिस बाय दिस. ऑलराइट, समझा? लिखो इतना जल्दी से. सचिन सर भी उठे तब ना पूछा जाए, सोए. चलो, सो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट अबाउट द रियल इंटरसेप्ट और इमेजिनरी इंटरसेप्ट? कोई बताएगा सोच के क्या करेंगे? बताओ. सिमिलर टू रियल लाइन, अगर रियल इंटरसेप्ट निकालना है तो क्या किया जाए? बताओ. इफ यू वांट टू फाइंड द रियल इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन, व्हाट विल यू डू? जैसे x इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करते थे? वी वांट टू फाइंड द x इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन, क्या करते थे? y को 0 रख देते थे ना. क्यों 0 रखते थे y को? Because it's like solving with x-axis ना. What is the equation of x-axis? y equal to 0. Hence y equal to 0. तो x आ जाता था. So just like that you have to solve this with real line. If you solve this with real line, you'll get the real intercept. So what is the equation of real line? Real line की equation क्या है? बताओ. रियल लाइन की इक्वेशन क्या है? वही बात ना, y इक्वल टू 0 है ना. y इक्वल टू 0 है, राइट? तो उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख लो ना. तो z माइनस z बार अपॉन 2 आयोटा इक्वल टू 0.
z इक्वल टू z बार, ये तो इक्वेशन बची, राइट। y इक्वल टू 0, तो y को 0 रख दो, तो z माइनस z बार इक्वल टू 0 हो गया ना एक तरीके से, z इक्वल टू z बार। तो ये रियल लाइन की इक्वेशन है और ये अपनी गिवन लाइन है। व्हेन आई आस्क की फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इंटरसेक्शन पॉइंट किसको बोलते हैं, मतलब व्हाट डू आई फाइंड सो दैट आई कैन से कि दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। उसमें तो x और y निकल जाता था, इसमें z निकाल लो ना। We want a z which lies on this line as well as this line ना, तो z is the answer। तो उसके लिए क्या करो, z आना चाहिए बट z बार नहीं आना चाहिए साथ में, तो एलिमिनेट z बार एंड गेट z, सिंपल। इंटरसेक्शन पॉइंट इज x, y, नॉट x, y, तो z इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, तो तुम्हें z निकालना है, ठीक है। और z जब निकाल रहे हो तो डोंट ब्रिंग आउट z इन टर्म्स ऑफ z बार, वो गड़बड़ हो जाएगी ना। इंटरसेक्शन पॉइंट ऐसा अलग से आना चाहिए। तो क्या करोगे, सिंपली हमेशा z बार उड़ा दो, whatever you do get rid of z bar and eventually you'll be left with some z, तो that z is the intersection point। तो अभी क्या करोगे, z बार उड़ाने के लिए z बार को z रख दो, तो a प्लस a बार z प्लस b is 0, तो z क्या बन गया माइनस b अपॉन a प्लस a बार। तो दिस इज द रियल इंटरसेप्ट, और ये रियल आ भी रहा है, a प्लस a बार भी एक रियल वैल्यू होती है, b भी रियल वैल्यू है, ठीक है। इमेजिनरी लाइन की इक्वेशन क्या होगी बताओ, इमेजिनरी लाइन z इक्वल टू माइनस z बार ना, z प्लस z बार इक्वल टू 0, राइट, x इक्वल टू 0, यानी z प्लस z बार इक्वल टू 0, तो z बार को माइनस z रखोगे अगर निकालना है तो यू विल बी लेफ्ट विथ माइनस a प्लस a बार इंटू z प्लस b इक्वल टू 0, तो z क्या मिल रहा है, b अपॉन a बार माइनस a, ये मिल रहा है ना। हाँ सॉरी, a माइनस a बार, विच इज इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी आ रहा है, तो ये इमेजिनरी इंटरसेप्ट हो गया। आर यू गेटिंग दिस, ठीक है। चलो तो एक काम करो, एक क्वेश्चन देता हूँ, सोच समझ के करना, ठीक है। यही जो अभी सीखा है यही अप्लाई करना है। तो ये देखो, मतलब आई एम नॉट आस्किंग यू टू रिमेम्बर दिस एज अ फॉर्मूला, जस्ट डिराइव इट सो दैट थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। जितना समझ आना चाहिए उतना मैं बताते जा रहा हूँ, एंड जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस, कैन यू गेट दिस, थिंक अबाउट दिस। लेट्स से देयर इज अ पॉइंट z1 एंड अ लाइन a bar z plus a z bar plus b equal to 0, ठीक है। Line is also given, point is also given. So from here find foot of perpendicular, image and perpendicular distance of a point from a line. Understood? Try to derive that. And when I say find the foot of perpendicular, that means find that foot of perpendicular का z। तो सोचो, समझ आया ना, z1 से इस पे लाइन पे 90 डिग्री ड्रॉप करोगे तो वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला z कैसे मिलेगा। थिंक क्या क्या यूज कर सकते हो, सोचो। मैंने अभी जो भी सिखाया है उसमें से सब कुछ यूज कर ही सकते हो, जस्ट थिंक अबाउट इट। चलो हो गया। अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया तो बाकी सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा। रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन ऑटोमेटिकली गेट। हाउ विल यू डू दिस? जो भी बोलता जा रहा है करते जाओ। लेट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर बी Z2, ऑलराइट। अगर Z2 फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो फर्स्ट थिंग Z2 मस्ट लाई ऑन द लाइन। तो वी नो that a z2 bar plus a bar z2 plus b 0, सबसे पहले ये हो गया कि z2 must satisfy the line। और दूसरा क्या हो गया, since it's the foot of perpendicular, this line and this line are perpendicular ना, तो sum of complex slopes must be 0, right? तो इसका complex slope क्या है,
लाइन का कॉम्प्लेक्स स्लोप है माइनस ए बाय ए बार प्लस इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या है, अभी सीखा था हमने लास्ट टाइम ही, z1 माइनस z2 अपॉन उसका बार। यहां तक समझा? और यूजिंग दीज टू कंडीशंस गेट z2। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, माइनस ए z1 बार प्लस ए z2 बार प्लस a bar z1 minus a bar z2 is 0. Now all you have to do is get rid of z2 bar. तो a z2 bar को क्या लिख सकते हो, जैसे ये हो गया माइनस a z1 बार प्लस a bar z1 माइनस a bar z2, और a z2 बार को क्या लिख सकते हैं, माइनस a bar z2 माइनस b, ऐसे। तो यहां से कलेक्ट z1, कलेक्ट z2, तो क्या बन रहा है, ये बन जाएगा। तो माइनस ए z1 बार प्लस a बार z1 माइनस b इज इक्वल्स टू 2a बार z2 दिस अपॉन 2a बार, दिस इज z2। ओके, ये z2 है। आई होप मैं कैलकुलेशन मिस्टेक ना किया हो, बट दिस इज z2। ओके, ये z2 आ गया, a बार z1 a z1 बार और b अपॉन 2a बार, ठीक है। और ये आ गया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी z1 माइनस z2 का मॉड, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो z1 माइनस z2 क्या बन रहा है, z1 माइनस z2। सो ये क्या मिलेगा, 2a बार z1 माइनस a बार z1, तो a बार z1 प्लस a z1 बार प्लस b अपॉन 2a बार का मॉड, ये बन रहा है। ओके, इज देयर एनीवन हु हैज डाउट्स ऑन दिस? तो ये फॉर्मूला मतलब ये भी करेक्ट है अपना, क्योंकि आई रिमेंबर ये सही है। ये वाला फॉर्मूला कैसे बन रहा है देखो, जैसे अपना क्या आता था, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्म में आता था ना, ठीक है, वैसे ही आ रहा है। देखो इस लाइन में z1 रखो लाइन में, तो a बार z1 प्लस a z1 बार प्लस b अपॉन 2 मॉड ए लिख दो इसको, बस 2a बार का मॉड इज 2 मॉड है ना, मतलब ऐसे लिख सकते हो इवेंचुअली, अपॉन 2 मॉड ए। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, राइट। सो ऐसा आ गया। और इमेज का भी निकाल ही लो, इमेज का कैसे निकालोगे, इमेज विल बी, दिस इज z3 इमेज है, तो z3 प्लस z1 इज 2z2, तो 2z2 माइनस z1 ये इमेज हो जाएगा ना, 2z2 माइनस z1 इज द इमेज। तो निकाल के देख लो क्या बन रहा है, निकाल लो, ठीक है। बट यू डोंट हैव टू रिमेम्बर दिस, मतलब दिस इज नॉट फॉर रिमेम्बरिंग पर्पसेस, जस्ट सॉल्व दिस एंड अंडरस्टैंड दिस। आई विल गिव यू वन मोर क्वेश्चन एंड ट्राई दैट क्वेश्चन, जैसे भी अच्छा लग रहा है। So next question is page number 127, question number 43, exercise 3 का 43 वाला सम अभी करना है। Try this exercise 3 question number 43 reflection वाला। Let's see how will you do this। कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, कॉन्सेप्ट वही के वही है, जस्ट वी हैव टू सॉल्व एवरीथिंग इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म नाउ। अरे इमेज क्या हो जाएगा, जैसे मान लो Z3 इमेज, Z3 इमेज है, तो Z3 प्लस Z1 अपॉन 2 मस्ट बी Z2 ना, तो Z3 इज 2Z2 माइनस Z1, तो Z2 पता है, Z1 पता है, गेट Z3, राइट। मतलब अपन यूजुअली क्या करते थे, when we have to find out the bisector या फिर कुछ और निकालना है, बताओ क्या करते थे। you have to find out the third line। देखो एक तो ये होता था ना, जैसा अपन उसमें करते थे वैसे इधर करेंगे। अपन ये करते थे ना कि मान लो ये लाइन है
और ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल इक्वेट कर देते थे, याद आ रहा है, tan थीटा इक्वेट कर देते थे सेम डायरेक्शन में, तो उससे m सॉल्व हो जाता था। इसको जैसे m1 है, दिस इज m1, दिस इज m2 एंड दिस इज m, तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इज m2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m2, उससे m सॉल्व हो जाता था। बस वही चाहिए क्योंकि it anyway passes through their intersection point. So just like that, if we can get a complex slope, if we get the complex slope of this third line, अपना आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, इसने बोला रिफ्लेक्शन ना, तो पहली लाइन देके रखी हुई है μ1, दूसरे वाले का μ2 है, और तीसरे वाले का अपन को कॉम्प्लेक्स स्लोप ही निकालना है क्योंकि अपन को ये पता है कि पासेस थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, राइट। सो म्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, सेम थिंग वी आर डूइंग इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो हमें अभी जस्ट सीखा था कि μ1 और μ2, अगर मान लो ये दोनों इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप μ1 है, इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप μ2 है, और एक्चुअल एंगल बिटवीन द लाइन्स इज थीटा, देन कहना है μ1 इज μ2 सिस टू थीटा। बोलो, इज दिस फाइन? इनके बीच में थीटा एंगल है, तो μ1 इज μ2 सिस टू थीटा, एंड μ2 को क्या लिख सकता हूँ, म्यू सिस टू थीटा। तो डिवाइड करो तो μ2 स्क्वायर इज μ1 ये आ रहा है कि नहीं बताओ, ये समझा? तो म्यू क्या आ रहा है, μ2 स्क्वायर अपॉन μ1, ऑलराइट, ये समझ आया किसी को? तो ये कॉम्प्लेक्स स्लोप आ गया इससे, ठीक है। तो अपन यूज कैसे करेंगे, अपन को खाली कॉम्प्लेक्स स्लोप ही निकालना था, यूज कैसे करेंगे, एनी लाइन passing through the intersection point of two given lines is given by L1 plus lambda L2. Any line passing through the intersection point of two given lines is L1 plus lambda L2, right? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो क्या हुआ है, तो कॉन्सेप्ट वही ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म इज सिमिलर टू रियल फॉर्म। इसमें z का x प्लस y डाल दूंगा तो ये ax b by c फॉर्म में रहेगा। अब इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप म्यू है, तो पहले अपन μ1 निकाल लेते हैं। μ1 क्या है, μ1 यानी पहली μ1 ये आ रहा है, μ1 किसका रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, 2 प्लस आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा वाला, तो माइनस a बाय a बार, तो माइनस a बाय a बार, ऑलराइट, दिस इज μ1। तो वो कितना रहा, रैशनलाइज कर लेते ना, सो विल गेट दिस इज माइनस 2 माइनस आयोटा द होल स्क्वायर अपॉन 5, तो 2 माइनस आयोटा द होल स्क्वायर क्या जाएगा, 4 माइनस 1 माइनस 4 आयोटा, तो 3 प्लस 4 आयोटा बाय 5, यहां तक समझा? दिस इज 3 प्लस 4 आयोटा बाय 5, दिस इज μ1। μ2 क्या आ जाएगा, μ2 माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ z बार आयोटा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ z माइनस आयोटा, तो μ2 1 आ रहा है, राइट। तो म्यू क्या आ गया, 5 by 3 plus 4 आयोटा, तो विच इज 5 into 3 minus 4 आयोटा अपॉन 5, ये आ रहा है, ठीक है, म्यू। बट म्यू एक्चुअली क्या आना चाहिए, म्यू इज द कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या हो जाएगा, म्यू इज ऑल्सो गिवन बाय माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ z बार, तो माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ z बार क्या बन रहा है, 2 माइनस आयोटा प्लस आयोटा लैम्डा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ z, तो 2 प्लस आयोटा माइनस लैम्डा आयोटा, इसको रख दो 3 माइनस 4 आयोटा बाय 5 के बराबर, तो लैम्डा सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, बस आ गया आंसर। ये पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सॉल्व करा है अपन ने, ठीक है, चलेगा, ये पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सॉल्व करा है, मतलब यू कैन हैव डन द सेम थिंग इन रियल ऑल्सो, कि सब जगह x प्लस वाई डाल दो, उसके बाद रियल से जैसे सॉल्व करते थे वही हो गया, बट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी थोड़ा सा सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। इज देयर एनीवन हु हैज प्रॉब्लम विद दिस, थोड़ा कैलकुलेशन हो रहा है बट ठीक है, मैंने कब मना करा, बट चलेगा, देख लो लैम्डा निकाल लो, तो
तो स्ट्रेट लाइन में इतना काफी है, दिस मच इज मोर देन इनफ। मैं सर्कल से स्टार्ट करता हूँ। और मैं सर्कल समझा देता हूँ। देखो ये सब थोड़ा थोड़ा तुम्हारा लोकस भी कवर होते जा रहा है। समटाइम्स ऑल यू हैव टू डू इज लाइक ऑब्जर्व द इक्वेशन, जो भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दी हुई है, एंड आइडेंटिफाई कि क्या लोकस हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन का लोकस तुम्हें समझ आएगी कि स्ट्रेट लाइन कैसा होता है। अब सर्कल देखो किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले मैं सर्कल का थ्योरी करा देता हूँ, फिर एकदम सम्स करेंगे इजी से लेकर डिफिकल्ट तक। नाउ लेट्स सी सर्कल। तो सर्कल तो बहुत सिंपल सा है, बट अलग अलग फॉर्म में भी स्टडी दिस। जैसे सेंटर इज गिवन, लेट्स से कॉम्प्लेक्स नंबर ए, सेंटर इज ए एंड रेडियस स्मॉल आर। सो इक्वेशन क्या बन जाएगी, z माइनस ए का मॉड इज आर, राइट। z माइनस ए का मॉड इज आर इज द सर्कल, बट समटाइम्स वी एक्सप्रेस इक्वेशन नॉट इन टर्म्स ऑफ मॉड बट z बार। ठीक है, तो इसको स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, z बार माइनस ए जेड बार माइनस ए बार जेड प्लस मॉड ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। जस्ट लाइक x स्क्वायर बाय स्क्वायर 2gx 2f by c, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, राइट, बट इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा, जनरल इक्वेशन में क्या क्या होगा, z बार हो सकता है, एक z बार हो सकता है, एक z हो सकता है और एक कांस्टेंट टर्म होगा रियल नंबर। तो इसको ऐसे लिख रहा हूं, जैसे सेंटर इधर c ले लेता हूं। तो z बार, एक z बार होगा तो a z बार और ये उसका कॉन्जुगेट आ रहा है प्लस एक कांस्टेंट b। तो जनरल इक्वेशन समझा, इस फॉर्म में लिख सकते हो, z बार आ सकता है, z आ सकता है, z बार आ सकता है और कांस्टेंट रियल नंबर आ सकता है। तो दिस इज द जनरल इक्वेशन, x स्क्वायर बाय स्क्वायर 2gx 2f by c, इस टाइप में। ठीक है, तो कोई सा भी इक्वेशन इस फॉर्म में आ सकता है, where a is a complex number here and b is a real number, right? एंड बी रियल समझ के रखियो, z बार रियल होता है, a z बार प्लस a बार z भी रियल होता है। तो थर्ड वाला नंबर भी रियल होना पड़ेगा फॉर द सम टू बी 0। या फिर यहीं से दिख रहा है मॉड c स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो मॉड c रियल है, r रियल है, तो b भी रियल होगा, तो कांस्टेंट टर्म भी रियल। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कंपेयर करके दिख रहा है ना कि अगर जनरल इक्वेशन दी हुई है तो उसका सर्कल का सेंटर, जैसे माइनस जी माइनस है पता था ना, वैसे इसको इससे कंपेयर करो। इसका सेंटर c है, तो कंपेयर करके z बार का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे माइनस c है, तो c इज माइनस a, तो सेंटर क्या बन रहा है, सेंटर इज माइनस a और माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ z बार, ये सेंटर आ गया। ठीक है, और रेडियस कैसे निकालोगे, रेडियस इज मॉड c स्क्वायर माइनस b, दिस इक्वल टू b लिख दो ना, तो मॉड c स्क्वायर माइनस b, बट मॉड c की जगह a रखना है क्योंकि इसमें a दिया हुआ है, तो मॉड a स्क्वायर माइनस b, समझा किसी को। ठीक है, दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द, ऑलराइट, इतना समझा। नाउ आई विल मेक यू डिराइव कंडीशन। सी, आई एम टेलिंग अगेन, एवरीथिंग इज एग्जैक्टली सेम एज रियल वाला सर्कल। नाउ जस्ट वी आर रिप्रेजेंटिंग एवरीथिंग इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो आई विल आस्क यू फ्यू बेसिक क्वेश्चंस एंड यू जस्ट ट्राई टू डिराइव कंडीशन। जैसे ये सर्कल है मान लो, ठीक है। नाउ लेट्स से टू सर्कल्स आर गिवन, z बार प्लस a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल टू 0 एंड अनदर सर्कल इज z बार प्लस c बार z प्लस c z बार प्लस d इक्वल टू 0। नाउ दीज टू सर्कल्स आर गिवन, जस्ट थिंक अबाउट इट, क्योंकि यू ऑलरेडी नो कि इसकी कंडीशन क्या होती है। जस्ट डिराइव द सेम थिंग इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। मान लो फाइंड कंडीशन इन a b c d if circles touch each other। ठीक है, if circles are orthogonal, okay, if जैसे ये C1 बोल रहा हूं मैं, सर्कल 1 सर्कल 2, if C1 bisects circumference of C2
और जो भी मन में आ रहा है, मतलब कुछ भी कंडीशन, जस्ट ट्राई टू डिराइव दिस, सोच के बताओ क्या होगा। C1/6 circumference of C2 और लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट Z1। ठीक है, ये डिराइव करके देखो आ रहा है क्या समझ में। क्वेश्चन 2, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट PZ1 ऑन सर्कल मॉड Z इक्वल टू R। देखो जरा समझ आता है। पहला वाला तो आ रहा है ना, पहला वाला क्या करेंगे बताओ। If circles touch each other, then what is the condition? क्या आवाज नहीं आ रही? Correct. पहला वाला सर्कल्स टच ईच अदर, तो देयर आर टू केसेस, इंटरनल टच और एक्सटर्नल टच। तो बताओ क्या कंडीशन हो जाएगी। इंटरनल के लिए क्या होता है और एक्सटर्नल के लिए क्या होता है बताओ। If they are touching each other externally, the actual condition was distance between the centers must be equal to sum of radii। याद आ रहा है? तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ये हो जाएगा कि नहीं, मॉड ऑफ A माइनस C। एंड सम ऑफ रेडाई क्या बन जाएगा, रूट ओवर मॉड A स्क्वायर माइनस B प्लस रूट ओवर मॉड C स्क्वायर माइनस D। इसको स्क्वायर कर सकते हो चाहो तो, इसको स्क्वायर की कुछ कंडीशन, मॉड A स्क्वायर मॉड C स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बट यू कैन लीव इट लाइक दिस ऑल्सो। बस ऐसे ही डिराइव करवा रहा हूँ, मतलब ये याद नहीं रखना है और तुम्हें अंडरस्टैंडिंग तो हो जाएगी कम से कम। इसमें क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज डिफरेंस ऑफ रेडाई। याद आया, R1 माइनस R2। ऑर्थोगोनल की कंडीशन निकालो, चलो जल्दी निकालो, लिखो इसको। चलो आ गया, सॉल्व हुआ, लिखो जल्दी। वही जो अपन ने सर्कल में, एक्चुअल सर्कल में सीखा, अप्लाई द सेम थिंग। ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या होती है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर। सो सेकंड डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर इज R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, इसका ओपन करोगे तो मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड C स्क्वायर माइनस AC बार माइनस A बार C, मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड C स्क्वायर माइनस D माइनस B। तो ऐसा बन जाएगा AC बार प्लस A बार C B प्लस D, जो कि याद नहीं रखना है बस। आर यू गेटिंग दिस नाउ, आर यू गेटिंग हैंग ऑफ दिस कि करना क्या है, मतलब है वही सब कुछ बट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अप्लाई किए जा रहे हैं। Let's say C1 bisects the circumference of C2. So what was the condition? What was the condition? If C1 bisects the circumference of C2, ये एक सर्कल है C1, सॉरी ये C2 है और C1 ऐसे बाइसेक्ट करके जा रहा है। तो याद है अपन ने डिराइव करा होगा, ऐसे बोल सकते हो ना कि this is D, this is R1 and this is R2। तो R1 square is R2 square plus D square, या फिर R1 square minus R2 square is D square, right? याद आ रहा है कुछ? R1 स्क्वायर मतलब सर्कल 1 बाइसेक्ट द सर्कल, सर्कल 1 का स्क्वायर मतलब मॉड A स्क्वायर माइनस B प्लस मॉड C स्क्वायर माइनस D, प्लस नहीं माइनस, इस डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल्स का स्क्वायर। तो मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड C स्क्वायर माइनस A बार C माइनस AC बार, राइट। तो क्या कैंसिल हो रहा है, मॉड A स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। तो देख लो क्या कंडीशन बन रही है, 2 mod C square is equals to A bar C plus AC bar minus B plus D, ऐसे ये लिख सकते हो, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट यू ऑलरेडी नो, व्हाट विल बी द आंसर, टेल मी। लेंथ ऑफ टेंजेंट बस, तो रूट S1 मतलब
रूट ओवर z1 बार प्लस a z1 बार प्लस a बार z1 प्लस b इक्वल टू 0, उसका रूट, वो भी एक रियल नंबर ही आएगा घूम फिर के। समझा किसी को? सिंपल। सेम चीज ही अप्लाई कर रहे हैं। अब ये निकाल के बताओ क्वेश्चन 2, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एक z1 एक पॉइंट है इस सर्कल पर, मॉड z इक्वल टू r, एंड सॉल्व इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। आई डोंट वांट यू टू डिराइव पहले रियल में कन्वर्ट करके फिर कॉम्प्लेक्स में लेके आओ, वैसा नहीं। रियल में तो यू ऑलरेडी नो आंसर इज t इक्वल टू 0, बट कैन यू डिराइव द सेम थिंग इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म? देखो जरा ट्राई करके, चलो करो ट्राई। चलो टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है ना, तो क्या करोगे? काफी तरीके से सोच सकते हो। एक तो सिंपल तरीका क्या हो जाएगा, ये रहा सर्कल एंड देयर इज दिस पॉइंट z1, पॉइंट z1 है और z का लोकस निकालना है सो दैट इट इज टेंजेंट। तो z इस लाइन पे मूव कर रहा है ना, तो सबसे पहले अपन को क्या चाहिए एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए? एक पॉइंट और स्लोप ना, राइट? तो एक पॉइंट तो z1 पता ही है, तो z माइनस z1 अपॉन z बार माइनस z1 बार इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स स्लोप और निकाल लेते हैं। इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप म्यू है और इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या हो जाएगा? ओरिजिन और z1 वाले को कनेक्ट करने वाले को z1 माइनस 0 अपॉन z1 बार माइनस 0 बार, तो z1 अपॉन z1 बार और नॉट, बताओ जल्दी। तो म्यू प्लस दिस ये 0 होना चाहिए, तो म्यू क्या मिल गया? माइनस z1 अपॉन z1 बार। अब इसको रीअरेंज करना है तो कर लो, थोड़ा इजी सा पड़ जाएगा, बट यही आंसर। समझा? That's it. That's it. ठीक है, तो हमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना सीख लिया, ये टेंजेंट निकालना सीख लिया। इसमें से याद करने लायक अभी कुछ भी नहीं है, राइट? सर इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस से कैसे करेंगे? उससे इक्वेशन कैसे मिलेगी? उससे इक्वेशन थोड़ी मिलेगी, वो तो कंडीशन है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कि अगर टेंजेंट है तो क्या, तो वी से कि p इक्वल्स टू r, बट आई एम आस्किंग कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? जैसे t इक्वल टू 0 आता था ना, तो द सेम रिजल्ट इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अब इसमें z को x प्लस y रखोगे तो इवेंचुअली यू विल गेट x1 प्लस y1 इक्वल टू r स्क्वायर टाइप्स। ओके, इसमें ये भी पता ही हमें कि z1 अगर उस पर लाई कर रहा है तो z1 बार r स्क्वायर होगा, तो वो थोड़ा सा मैनिपुलेट करके आ ही जाएगा उस फॉर्म में। ठीक है, सर इसमें से अपन वो डेरिवेटिव से बच सकते हैं सर, जिससे अपन कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट करते हैं dy/dx। तो dy/dx का इंटरप्रिटेशन तो स्लोप होता है, इसमें किसको डिफरेंशिएट करोगे? हाँ, सर्कल की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे और वो पॉइंट किसके रिस्पेक्ट में? दूसरा से कर सकते हैं। नहीं, उसका इंटरप्रिटेशन ही नहीं है ना कुछ, मतलब ऐसा। अपन dy/dx तो अपन ने प्रूव करके रखा है कि dy/dx इज द स्लोप एट दैट पॉइंट। इसमें क्या करोगे? इसमें तो उसका कोई पॉइंट ही नहीं है कि dz से z के टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे तो dz क्या होता है? कुछ ना कुछ कनेक्ट तो कर ही सकते हैं अगर चाहोगे तो, बट लाइक पॉइंटलेस ही है वो। चलो मैं और क्वेश्चंस दूंगा, बट मैं सोच रहा हूँ पहले थोड़ा सा थ्योरी कवर कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज अपोलोनियस सर्कल्स। ठीक है, अब ये भी लोकस के काम आ जाता है कि अगर ऐसा दिखे तो यू कैन जज कि ये क्या शेप आएगा इसका। ठीक है, तो मान लो az1 एंड bz2 दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, ओके, एंड एक वेरिएबल पॉइंट है pz वेरी सच दैट pa/pb हमेशा कांस्टेंट है, pa/pb इज ऑलवेज कांस्टेंट, और mod of z minus z1 अपॉन mod of z minus z2 इज k। अगर ऐसा दिख जाए तो विल जज कि क्या आने वाला है। ठीक है, ये लोकस, ये डेफिनेशन याद रख सकते हो कि दिस इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा है, देन z का लोकस क्या होगा। एक्सप्लिसिटली ऐसे फॉर्म में आ रहा है, तो ध्यान से देखो,
ये तो सबको समझ रहे नहीं, k इज इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1 में क्या आ जाएगा बताओ? z is perpendicular bisector ना, this distance equal to this distance मतलब perpendicular bisector. If k is not equal to 1 then it represents circles. Let's see कैसे. I'll explain this geometrically. I prefer geometrically ज़्यादा easily आ जाता है, ठीक है? तो let's see how. ठीक है, तो ये रहा, मान लो अपना डायग्राम बना देता हूँ ऐसे ही. ये रहा a z1, ये रहा b z2 और ये p z, ठीक है? अब एक काम करो, जो p है ना, p का इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बनाओ. तो ये c है और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर d है मान लो, ठीक है? तो अभी हमें ये पता प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर दैट इट डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल. तो PA by PB is also given by AC by CB or not, बोलो. And the same property is for external angle bisector also, but D will divide them externally in the ratio k is to 1. So PA by PB is AC by CB is same as AD by BD equals to k upon 1, ठीक है? अब अपन को देखो, Z1 पता है, Z2 पता है और K भी पता ही है. तो कहना है कि it's like C divides A and B in the ratio k is to 1 internally, right? C divides, that implies C divides A and B in the ratio k is to 1 internally. तो C का कोऑर्डिनेट क्या बन गया? KZ2 plus Z1 upon K plus 1. और D का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? D divides same but externally. तो K and minus 1. तो KZ2 minus Z1 अपॉन K minus 1. यहां तक किसी को डाउट है बोलो कि ठीक है? चलो अब ध्यान से देखना, Z1 फिक्स्ड है, Z2 फिक्स्ड है, K भी फिक्स्ड है. उसने देखे रखा है, फिक्स्ड रेशियो है, कांस्टेंट है. तो C और D फिक्स हो गई कि नहीं बताओ? इवन दो P is variables, C and D are fixed points or not, ठीक है? तो ध्यान से देखो, C और D दोनों फिक्स्ड हैं. Also, since these two are angle bisectors, what is the angle between these two angle bisectors? तो ये एंगल हमेशा 90 होगा कि नहीं? तो what is the locus then? Circle with एंगल CPD 90 है. इसका मतलब P traces circle with CD diameter. CD diameter लेके जो सर्कल बनेगा वो ट्रेस करेगा. समझ आया? बस, तो सर्कल आ गया. अब इसका खाली क्या निकालना है? तो हमें ये समझ आया कि दिस अपॉन दिस कांस्टेंट k है, तो Z का लोकस आएगा सर्कल. विच सर्कल? सेंटर क्या आ जाएगा बताओ? सेंटर. और रेडियस क्या आ जाएगा ये निकाल के बताओ जल्दी से. सेंटर विल बी दिस प्लस दिस अपॉन 2, दिस प्लस दिस अपॉन 2. वो सिंप्लीफाई करके निकाल के रखो, मुझे रिजल्ट याद नहीं है. और रेडियस क्या आएगा? दिस माइनस दिस का मॉड अपॉन 2, ठीक है? C माइनस D का मॉड अपॉन 2. तो दिस माइनस दिस एलसीएम लेके निकाल के रखो, दोनों रिजल्ट निकाल के रखो. निकालो जल्दी से. ये पॉइंट याद रख सकते हो, ठीक है? कि अगर ये आ रहा तो लोकस आएगा, सर्कल का सेंटर और रेडियस ये है. और कैसे सर्कल बनेंगे वो भी दिखाता हूं मैं, ठीक है? राइट दिस. चलो सेंटर और रेडियस. सेंटर क्या है बताओ? सेंटर आई थिंक ऐसा कुछ आता है, k स्क्वायर Z2 माइनस Z1 अपॉन k स्क्वायर माइनस 1. एंड रेडियस
रेडियस निकाला क्या, दिस माइनस दिस का मॉड ले लो ना, क्या है रेडियस, रेडियस क्या है, हाँ वापस बोलो। ऐसा कुछ आता है, मुझे पूरा याद नहीं, k अपॉन k स्क्वायर माइनस 1 इंटू मॉड ऑफ z2 माइनस z1, ऐसा कुछ आता है क्या, क्या हुआ, निकल नहीं रहा क्या, हाँ यही आ रहा है, 2k z1 माइनस z2 का मॉड अपॉन k स्क्वायर, हाँ यही आ रहा है, सही है, मतलब इसका भी मॉड आना चाहिए वैसे, वी डोंट नो वेदर k इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन। अब देखो ये बनता क्या है, लुक एट दिस, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, तो k इक्वल टू 1 इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अदरवाइज याद आ रहा है किसी को, ये वाले सर्कल्स बनेंगे अगर मान लो k ग्रेटर देन 1 है, इफ k इज ग्रेटर देन 1 यानी PA PB से बड़ा होगा कि नहीं बताओ, इफ k इज ग्रेटर देन 1 PA PB से बड़ा होगा, तो सर्कल्स कहां बनेंगे, एंड सो ऑन, तो ये आ गया k ग्रेटर देन 1, ये आ गया k लेसर देन 1, तो ऐसे सर्कल्स बनेंगे, विच आर कोएक्सियल सर्कल्स ओनली, these are coaxial circles जिसमें A और B क्या है, लिमिटिंग पॉइंट्स, समझे, तो ऐसे सर्कल बनते हैं कि K की वैल्यू रखते जाओ, हाफ 1/3 1/7, तो ढेर सारे सर्कल यहाँ पे बनते जाएंगे, K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखते जाओ, 2 3 4, तो यहाँ पे सर्कल बनते जाएंगे, समझे, अगर K ग्रेटर देन 1 है तो PA PB से बड़ा होना चाहिए ना, तो इस साइड वाले सर्कल्स ट्रेस होंगे ना, इस साइड पे P हमेशा PB से बड़ा होगा, राइट, इज दिस फाइन, राइट दिस, तो ये लोकस के काम में आ जाएगा, इसको डायरेक्टली याद रख सकते हो चीजें। नेक्स्ट एक और चीज बता देता हूँ, फिर अपन सम्स करते हैं ढेर सारे। चल, सो नेक्स्ट थिंग इज, लोकस में देखो ऐसे टाइप का भी आ जाएगा तो तुम्हें समझ आना चाहिए, जैसे Z1 and Z2 two fixed points, alright, but right now Z moves such that Z is moving such that Z minus Z1 upon Z minus Z2 का आर्ग्यूमेंट अल्फा, well अल्फा इज अ कांस्टेंट, ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट हमेशा कांस्टेंट होगा, देन व्हाट इज द लोकस ऑफ Z, तो देखो केसेस बना लेते हैं, सब केसेस में समझ आ जाएगा, अगर अल्फा 0 या पाई है तो सोच के बताओ क्या लोकस आएगा, मान लो Z1 और Z2 का पोजीशन ऐसा है, Z1 इधर आ रहा है, Z2 उधर आ रहा है, अज्यूमिंग, तो सबको समझ आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन इज द आंसर, कैसे, तो आंसर देखो, अगर Z बीच में तो Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 पाई बनेगा, तो पाई वाला बीच में आ रहा है कि नहीं बताओ, और अगर ये समझे ना, एंगल Z माइनस Z1 और Z माइनस Z2 दो वेक्टर, उनके बीच का एंगल अगर 0 है तो Z क्या आएगा, 0 के लिए ये या फिर ये दो रेज, समझ गए, ऐसा, आई थिंक दिस इज इजी इनफ, ठीक है। सेकेंड वाला सुनो, अगर मान लो मैं बोलता हूं अल्फा 90 डिग्री है पाई बाय 2, तब क्या होगा,
वेरी गुड, इट्स एक्चुअली सेमी सर्कल। आई विल एक्सप्लेन हाउ। ठीक है, अब ये पॉइंट समझना। इट ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ Z1 एंड Z2। सो अज्यूमिंग Z1 इज हियर एंड Z2 इज हियर, वो Z1 Z2 पे डिपेंड करेगा, बट कहीं ना कहीं तो होंगे ना रिलेटिव टू ईच अदर। अज्यूमिंग Z1 इज हियर एंड Z2 इज हियर, तो ध्यान से देखो Z एक ऐसे ही पॉइंट है रैंडम, तो ये रहा Z माइनस Z1 और ये रहा Z माइनस Z2। तो ध्यान से देखो Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2, ये वाला एंगल मेजर होगा। दिस एंगल इज एक्चुअली गेटिंग मेजर्ड क्लॉकवाइज, तो ये एंगल कितना आएगा? माइनस पाई बाय 2, समझे? तो अल्फा प्लस पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2, ध्यान से देखो। तो अगर मान लो नीचे जा रहा है तो सबको समझ आ रहा है कि ये एंगल मेजर हो रहा है, सॉरी नहीं, Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2, ये एंगल मेजर हो रहा है, ये प्लस पाई बाय 2 है। तो कितने बच्चों को ये समझ आ रहा है कि अगर अल्फा प्लस पाई बाय 2 है तो इट इज दी लोअर सेमी सर्कल, समझा? आंसर है सेमी सर्कल, बट सेमी सर्कल में भी कौन सा वाला वो डिपेंड करता है। तो सेमी सर्कल ऑन बेसिस की Z1 इधर Z2 इधर है, तो लोअर सेमी सर्कल, और ये वाला आया अपर सेमी सर्कल। ठीक है, अगर मान लो Z2 इधर और Z1 इधर हो जाता तो स्वैप हो जाता, तो दैट डिपेंड्स अपॉन Z1 एंड Z2। ठीक है, राइट? नाउ थर्ड, इफ अल्फा इज एन अक्यूट एंगल, पॉजिटिव अक्यूट हो सकता है या फिर नेगेटिव अक्यूट हो सकता है, ऐसा तो क्या होगा बताओ? कांस्टेंट है, जैसे 30 है, फिक्स्ड है, 30 30 30 30 थ्रू आउट, पाई बाय 6 पाई बाय 6 पाई बाय 6। तो ये प्रॉपर्टी भी सर्कल की होती है। This is also the property of circle only. This is also circle. कैसे? देखो जरा, ये Z1 है, ये Z2 है, तो Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2, ये एंगल फिक्स्ड है, तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? सर्कल की प्रॉपर्टी होती है ना, मतलब ये रहा Z माइनस Z1 Z माइनस Z2। ठीक है, तो सर्कल की कैसी प्रॉपर्टी होती है कि एक कॉर्ड है, कॉर्ड ये एंगल फिक्स्ड है ना, ये एंगल फिक्स्ड है, तो एंगल फिक्स्ड है तो किसकी प्रॉपर्टी होती है ना, कॉर्ड है अगर मान लो, तो इट सबटेंड्स द सेम एंगल ऑन द सर्कमफेरेंस, राइट? तो अगर ये कांस्टेंट एंगल सबटेंड कर रहा है तो वो सर्कमफेरेंस ट्रेस करेगा ना, ये समझा किसी को? बट उसमें भी अगर अक्यूट एंगल है तो जैसे इसमें क्या मेजर होगा? Z माइनस, इसमें ये वाला नेगेटिव वाला मेजर हो रहा है और नीचे वाला पॉजिटिव वाला मेजर हो रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव वाला मेजर हो रहा है, तो आंसर इज ये वाला है मेजर आर्क, आंसर इज ओनली मेजर आर्क। अंडरस्टूड? ये वाला पोर्शन तो आ ही नहीं सकता, इस वाले बड़े वाले पोर्शन पे अक्यूट एंगल सबटेंड करेगा, तो मेजर आर्क। ठीक है, ये वाला मान लो अकॉर्डिंग टू Z1 एंड Z2 का पोजीशन, दिस वन फॉर द टाइम बीइंग, मतलब बिलो वाला। ठीक है, एंड ये वाला भी क्या रहा? मेजर आर्क अपर वाला। तो इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल, मेजर आर्क कौन सा वाला डिसाइड करेंगे वो Z1 Z2 और एंगल पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेगेटिव है तो कहां पर आएगा, पॉजिटिव है तो कहां पर आएगा। ठीक है, और कोई सोच के बताएगा कि अगर मान लो अल्फा ऑब्ट्यूज है तो क्या बनेगा? अल्फा पाई बाय 2 टू पाई है, या फिर माइनस पाई से लेकर माइनस पाई बाय 2, बताओ? ये भी कांस्टेंट प्रॉपर्टी उसी की होगी ना सर्कल की, बट इस केस में क्या होना चाहिए? मेजर आर्क, सॉरी माइनर आर्क। माइनर आर्क ना पीछे सबटेंड करेगा। बनाओ डायग्राम की, समझ गए? माइनर आर्क मतलब इतने पोर्शन पे सबटेंड करेगा, तो माइनर आर्क इज द आंसर। ओके, अंडरस्टूड? अब इसमें ये पॉइंट भी समझो कि लोकस इज दिस व्हाटएवर आई हैव रिटन एक्सेप्ट Z1 एंड Z2। कहीं पे भी Z1 Z2 इंक्लूडेड नहीं है, उस पे ओपन सर्कल होगा। इस पे Z को Z1 रख के देखो, सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। Z को Z2 रख के देखो, सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। तो Z1 Z2 हर जगह Z1 Z2 पे ओपन सर्कल है, Z1 एंड Z2 आर एक्सक्लूडेड। इज दिस अंडरस्टूड टू एवरीवन? तो ये जो भी है सर्कल की थ्योरी ये हो गई। अब मैं इस पे क्वेश्चंस देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया लोकस डिटेक्शन भी हो गया कि स्टैंडर्ड लोकस है, तो इसको देख के अपन टिक करके आ जाएंगे कि ये क्या बनेगा इवेंचुअली, और क्या क्या अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनता है। आई विल गिव यू द क्वेश्चंस आल्सो, राइट दिस।
तो जिस सीक्वेंस में क्वेश्चंस दे रहा हूँ उसी सीक्वेंस में ट्राई करो। राइट दिस। थर्टी फोर्थ में डी ऑप्शन अलग से लिख लो, जो डी ऑप्शन दिया हुआ ना वो कैंसिल करके ये लिखो, चेक वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। इन चैप्टर 4 का 5 भले ही बाद में कर लेना है, चलो ये वाले कर लो, वो स्ट्रेट लाइन का वो घर जाके कर लेना, बाकी एक दो सम्स मैं खुद दे रहा हूँ, ठीक है। चलो ये वाले और ये लास्ट वाला सम्स अभी करना है, बाकी ये वाला होमवर्क ये घर जाके करना, ठीक है। तो ट्राई दिस, आई विल गिव यू हाफ एन आवर, ठीक है। मैं कुछ खा के आता हूँ, तो पहले ये बुकलेट वाले टिक कर लो कौन से करना है, उसके बाद ये वाला लास्ट वाला सम भी ट्राई करना, ठीक है। तो मैं आता हूँ 15-20 मिनट में, ठीक है। तो यू ट्राई दिस सम्स, अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो प्रोसीड टू द नेक्स्ट सम, अटेम्प्ट सारे कर लो, फिर मैं आके डिस्कस करता हूँ, ठीक है। बहुत सारे तो डायरेक्टली टिक करने वाले हैं। चलो कौन सा हो गया, कौन से डिस्कस करिए बताओ। 1B का कौन सा करना है, 23, 20, 21, 23, 24 में से कौन सा करना है? हो गए सारे? 1C 32 हो गया, चलो 32 विल डू। तो 32 देखो, मॉड ऑफ z माइनस 1 इज 1, तो मॉड ऑफ z माइनस 1 इज 1, तो ये एक सर्कल बन जाएगा, सेंटर 1 एंड रेडियस 1, ठीक है। एंड दूसरा वाला देख रखा हुआ है, z माइनस 1 अपॉन z का आर्ग्यूमेंट है π/3, तो z माइनस 1 अपॉन z, तो z है इस पे घूम रहा है, तो z माइनस 1 अपॉन z, हाँ ठीक है, ऐसा बनेगा, ध्यान से देखो।
ये तो 1 है, ये z है, तो z माइनस 1 अपॉन z, तो दिस अपॉन दिस, तो ये वाला एंगल π/3 है। तो ऐसा पॉइंट है सर दैट एंगल π/3। ओके, नाउ लुक एट दिस, ये 1 है, ये 1 है। ओके, एंड सिंस दिस इज 60 डिग्री, तो ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो ये भी 1 हो गया और ये भी 60 हो गया, तो करेस्पॉन्डिंग मॉड z क्या है? 1। मॉड z ये होता है ना 1। सिंपल, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, यही वाला पॉइंट है। उसके बाद कौन सा है नेक्स्ट? ये क्वेश्चन लिख लिया ना, जल्दी बताओ, क्वेश्चन लिख लिए क्या? बोर्ड वाले लिखे हुए? चलो ठीक है, 34 देखते हैं। 34 में क्या दे रखा है? A है 4,6, B है 10,6। तो A हो गया 4,6 और B हो गया 10,6। अब उसने बोला है कि Z ऐसा मूव कर रहा है सर दैट Z माइनस A अपॉन Z माइनस B माइनस π/4। तो दो पॉसिबिलिटीज है, मेजर आर्क ऊपर वाला है, मेजर आर्क नीचे वाला, बट आई थिंक नीचे वाला आएगा। ध्यान से देखो कैसे, अगर A इधर है, B इधर है, तो Z माइनस A अपॉन Z माइनस B, ठीक है, तो Z माइनस A अपॉन Z माइनस B, नहीं ऊपर वाला ही आएगा, माइनस π/4 ऊपर आ रहा है, सॉरी ऊपर आ रहा है। समझ आया किसी को कि ऊपर आ रहा है कि नीचे? अभी नीचे Z माइनस C अपॉन Z माइनस B ये एंगल मेजर हो रहा है, जो कि हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो वो पॉजिटिव मेजर होगा नीचे वाले मेजर आर्क पे। आंसर एक्चुअली ऊपर वाला मेजर आर्क है। नहीं तो उसने Z माइनस B अपॉन Z माइनस C मांगा है, सॉरी रुको, अच्छा I'll fix it। ये रहा A, ये रहा B। A is 4,6 and B is 10,6। तो Z माइनस B अपॉन Z माइनस A मांगा है, ये मांगा है, तो ये एंगल नेगेटिव ही मेजर हो रहा है। तो एक्चुअली नीचे वाला मेजर आर्क इज राइट। किसी को समझ आया? बोलो, नीचे वाला मेजर आर्क राइट। नाउ ये एंगल है π/4, 45 डिग्री है, माइनर आर्क ऑफ द सर्कल ऑन द ओरिजिन साइड। अब ओरिजिन यहाँ पे कहीं होगा ना, ऐसा कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस के बेसिस पर बोल सकते हो। तो इट्स द मेजर आर्क on the origin side of AB except points A and B. So you understand, answer is C. But I give you one more option. तो ये ध्यान से देखो, Z satisfies this। ये तो सर्कल है, दिस इज द सर्कल ना, तो हमें बस ये वाले सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। ये सर्कल की इक्वेशन को Z सेटिस्फाई करेगा, सिंपल। तो ये सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? सेंटर और रेडियस। तो ध्यान से देखो, एंगल 45 है तो सेंटर पे कितना होगा? सेंटर पे 90 हो जाएगा ना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, थिंग इज इसका मिड पॉइंट क्या बन रहा है? मिड पॉइंट इज 7,6, ठीक है, और ये यहाँ पे कनेक्ट करता हूं सेंटर पे, तो ये डिस्टेंस क्या बन रहा है? देखो ये 45 हो गया ना, ये समझा, ये 45 है, ये 3 है और ये 45 है, तो ये भी 3 हो गया, तो ये 3√2 हो गया रेडियस। ऑलराइट, रेडियस 3√2 है एंड सेंटर क्या हो जाएगा? ये 7,6 है तो 3 यूनिट्स वर्टिकली, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकली होगा, तो वर्टिकली नीचे आ जाओ, तो सेंटर क्या आ जाएगा? सेंटर आ जाएगा 7,3। समझा किसी को? तो सर्कल विद सेंटर 7,3 एंड रेडियस 3√2, उस पे Z लाई कर रहा है। इवन दो द लोकस इज मेजर आर्क, बट उस सर्कल को तो सेटिस्फाई करेगा ना, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट हो गया। समझा किसी को? बोलो। ऑलराइट, आई थिंक 2A वाला और 2B वाला तो एक एक लाइन में आ जाएंगे। 2A वाला आ रहा है? नहीं, 2A वाला 11 थोड़ा सा फाइटर है। 2A वाला 11 करूं? अरे तो धीमे मत करो यार, थोड़ा फास्ट करो यार, जल्दी जल्दी करो, थोड़ा सा कवर भी करना है काफी कुछ।
चलो करें स्टार्ट। 2a का 11th, ध्यान से देखो। 2a का 11th क्या बन रहा है? t and c are complex number, something something is given, ठीक है। तो z is at plus b upon t minus c, mod t is given 1 और z का लोकस निकालना है। तो zt minus zc is at plus b and zc plus b upon z minus a is t, ठीक है। रीअरेंज कर लिया। Now take mod on both the sides, तो zc plus b upon z minus a का mod आ गया 1 और c को कॉमन निकाल लो। तो यहां तक देखो समझ आ रहा है क्या? z plus b upon c upon z minus a का mod is 1 upon mod c। ये समझा किसी को? अब c तो फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है और नॉट इक्वल टू 1 है उसका मॉड। तो ये दिख रहा है किसी को? z minus z1 upon z minus z2 is equals to a constant value, hence it's a circle। Yes sir। ठीक है। आई थिंक 2b का 13 तो बहुत इजी है। 2b का 13 इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल एक्सेप्ट व्हेन m is 2। अगर m 2 आ जाएगा तो z 2 कॉमन निकालो पहले, तो z माइनस आयोटा अपॉन 2 अपॉन z प्लस 1 का मॉड इज m अपॉन 2 बन जाएगा। तो m 2 छोड़ के कुछ भी रखो, इट विल ऑलवेज बी ए सर्कल। तो कौन से ऑप्शन है? a चलेगा, b चलेगा, d चलेगा, राइट? ठीक है। चलो एक्सरसाइज 3 का 44 करना है। लिख लो इसको। क्वेश्चन लिख लिए क्या? क्वेश्चन फोर्टी फोर बार बस देखने के लिए लेंदी है, अजीब सा लग रहा है देख के कि ये कैसे आएगा, बट एक्चुअली कुछ भी नहीं करना है इसमें। इंटरसेक्शन पॉइंट ही निकालना है बस, और कुछ भी नहीं। ये Z इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये A और B है और ये C और D है, ठीक है। तो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, बट ABCD ऑल ऑफ देम आर लाइंग ऑन दिस सर्कल मॉड Z इक्वल टू R। तो ZZ बार R स्क्वायर होगा। तो हर जगह अपन ABCD में ये यूज कर सकते हैं। ध्यान से देखो, अगर Z इस लाइन पे लाई कर रहा है तो ये लिख सकता हूं Z माइनस बी अपॉन Z माइनस बी अपॉन Z बार माइनस B बार इज B माइनस A अपॉन B बार माइनस A बार। ये समझा क्या? किसी को बोलो। इस लाइन पे लाई कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? लुक एट दिस, Z माइनस B इज Z बार माइनस B बार को क्या लिख सकता हूं? R स्क्वायर बाय B। और यहाँ पे देखो ये क्या बन जाएगा? B माइनस A अपॉन B बार इज R स्क्वायर बाय B माइनस R स्क्वायर बाय A। तो क्या बन रहा है? ये माइनस AB बाय R स्क्वायर बच रहा है, ठीक है। देख लो एक बार, A माइनस B ये बन जाएगा B माइनस A अपॉन A माइनस B अपॉन AB R स्क्वायर। तो ये माइनस 1 कैंसिल, माइनस AB अपॉन R स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। और Z माइनस B इज माइनस AB बाय R स्क्वायर Z बार प्लस A, यानी ये बन रहा है। देखो जरा एक बार, इज देयर एनीवन हु हैज एनी डाउट अबाउट दिस? कि समझ आ रहा है? ये बन रहा है। और दूसरा रिजल्ट भी सेम होगा ना, सिमिलरली। नहीं यार, मुझे एक्चुअली क्या करना चाहिए? Z बार एलिमिनेट करना है मुझे। आई नीड टू गेट रिड ऑफ Z बार, आई नीड टू गेट रिड ऑफ Z बार। अच्छा एक सेकेंड, तो R स्क्वायर मतलब माइनस R स्क्वायर अपॉन AB Z इज Z बार माइनस R स्क्वायर अपॉन AB A प्लस B, ऐसे लिख लेता हूं। ये समझ आया? पहली कंडीशन ये आई, माइनस R स्क्वायर अपॉन AB से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। और पहली कंडीशन ये आई, तो दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगी? सिमिलरली वी कैन से, दूसरी कंडीशन आ जाएगी माइनस R स्क्वायर अपॉन CD Z इज Z बार माइनस R स्क्वायर अपॉन CD C प्लस D। तो दोनों को उड़ा दो यहां से, तो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा? R स्क्वायर बाय AB माइनस R स्क्वायर बाय CD Z इज Z बार कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? R स्क्वायर, ये बन जाएगा दिस माइनस दिस करा है ना, तो 1 बाय C प्लस 1 बाय T, ये वाला 1 बाय C प्लस 1 बाय T है,
-1/-1/b और r स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। देखो z जो प्रूव करना है वो आ गया, r स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। 1/c + 1/d -1/-1/b अपॉन ab - cd। नहीं, एक माइनस की गड़बड़ हो रही है, रुको, मैंने दिस माइनस दिस करा है ना। हाँ तो a और b प्लस आएंगे, सॉरी, अब डिवाइड कर दो। किसी को समझा? बोलो, डिड एनीवन अंडरस्टैंड दिस? बस इंटरसेक्शन पॉइंट ही निकालना था और वो a बार b बार c बार d बार को r स्क्वायर अपॉन a r स्क्वायर अपॉन b ऐसा लिखना था एज द रिजल्ट। ठीक है, इट्स नथिंग डिफिकल्ट। लिखो इसको। एक काम करो, बाकी दो क्वेश्चन घर से करके ले आना, ट्राई करके ले आना। मैं कुछ पढ़ा देता हूँ। क्या हुआ? सेकंड स्टेप ये वाला समझा था। दिस इज लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे कि एबीसीडी सर्कल पे लाई कर रहे हैं ना, मॉड z इक्वल टू r पर, तो ए बार इज r स्क्वायर, बी बार इज आल्सो r स्क्वायर, सी बार इज r स्क्वायर, डी बार इज r स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, ये जो ये वाला साइड है, b बार को लिख दिया r स्क्वायर बाय b और a बार को लिख दिया r स्क्वायर बाय a। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो ना, माइनस ए बी अपॉन आर स्क्वायर बन तो रहा है, तो माइनस z बार माइनस b बार ये रहा और ये वाला ये रहा, बस इसको नेक्स्ट सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, लिखो जल्दी से। चलो, so next thing is look at this। अब बस ये खाली अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए बता रहा हूँ, इसको कोई ज्यादा पूछता करता नहीं है, बट यू शुड अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो, राइट। नेक्स्ट इज लेट्स से इफ आई आस्क यू पैराबोला, तो पैराबोला का डेफिनेशन क्या बनेगा? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड पैराबोला यू शुड हैव फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स बोथ। तो लेट्स से फोकस इज z1 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज a बार z प्लस a z बार प्लस b। तो व्हाट विल बी द लोकस? पैराबोला का लोकस इस फॉर्म में होगा ना, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। समझ आया किसी को? बोलो। बस ये पैराबोला हो गया, ठीक है। इसमें कोई अलग से कुछ पूछेगा नहीं तुम्हें, ठीक है, जो भी है अपना वही का वही है, सेम एज रियल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्स कॉमा वाई वाला। एलिप्स बताओ क्या बन जाएगा? एलिप्स इज गिवन बाय mod of z minus z1 plus mod of z minus z2 is constant k, yes or no? ये एलिप्स हो गया, अगर z1 z2 आर फोसा है, ठीक है। बट इसमें कंडीशन होती थी कि अगर k ग्रेटर देन mod of z1 minus z2 है तो ही ये एलिप्स बनेगा, राइट। मतलब कैसे? देखो सिंपल सी कहानी है, ये रहा अपना एलिप्स, z इस पे मूव कर रहा है, ये z1 और ये z2 है, तो z अगर मूव कर रहा है तो ये ट्राइंगल बन रहा होगा ना। ट्राइंगल बन रहा है तो इट मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ बीइंग अ ट्राइंगल, सम ऑफ टू साइड्स। तो दिस pa प्लस दिस मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो दिस प्लस दिस जो कि k है, k मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, तभी वो ट्रेस कर पाएगा। अगर k इक्वल टू दिस तो क्या बनता है? ये लाइन सेगमेंट AB बनेगा ना, लाइन सेगमेंट इन दोनों फोकस के बीच का, ठीक है। और k लेस देन के लिए तो इट इज नथिंग, कुछ भी नहीं बनेगा, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है, वो इमेजिनरी कर्व बोल सकते हो। ये हो गया एलिप्स, ठीक है। अगर मान लो हाइपरबोला देखना है तो हाइपरबोला की कंडीशन कैसी आएगी? z माइनस z1 का मॉड माइनस z माइनस z2 का मॉड का मॉड, क्योंकि व्हेन वी से डिफरेंस एक्चुअल डिफरेंस लेते हैं तो मॉड ऑफ pa माइनस pb इज कांस्टेंट k। तो ये ऐसा बनेगा, यहाँ पे z1 और z2 है, ठीक है। अगर मैं बाहर मॉड नहीं लगाता तो एक ही ब्रांच आती, समझ रहे हो? लेफ्ट वाली z माइनस z1 माइनस z माइनस z2
इज कांस्टेंट k, तो k पॉजिटिव है तो ये वाली ब्रांच आएगी ना, डिस्टेंस फ्रॉम z1 ज्यादा है ऐसा बोल के, समझे मेरी बात? तो मॉड लगा लिया तो बहुत पॉसिबिलिटीज आते हैं। तो इसमें हाइपरबोला कब बनता है बताओ, जल्दी बोलो। When k is lesser than mod of z1 minus z2, right? डिफरेंस ऑफ टू साइड्स जो है वो लेस देन थर्ड साइड होना चाहिए। तो डिफरेंस ऑफ टू साइड्स k है और वो थर्ड साइड मतलब इस डिस्टेंस से छोटा होना चाहिए, तो वो हाइपरबोला बनेगा, ठीक है। अगर मान लो k बराबर z1 minus z2 तो क्या होता है, टू रेज, सेगमेंट नहीं, टू रेज, z1 से इधर या z2 से इधर, बीच का छोड़ के, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इक्वल टू थर्ड साइड कब होता है, जब वो एक्सटर्नली कोलिनियर हो ना। तो एक्सटर्नली कोलिनियर या तो इस डायरेक्शन में हो सकता है या फिर इन दिस डायरेक्शन। सो टू पॉसिबिलिटीज, टू रेज, अंडरस्टूड? ठीक है, लिखो इसको, राइट दिस डाउन। तो इसमें भी ऐसी एक डॉट क्रॉस करके डिफाइंड है, दैट डजंट मीन इट इज डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, इट्स जस्ट अ वे ऑफ डिफाइनिंग बिकॉज इट हैज रिजेम्बलेंस विद वेक्टर। ऐसा कुछ नहीं कि अलग से कुछ और वेक्टर बन जाएगा, क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट जैसा कुछ नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाई व्हाट दिस इज। मान लो दिस इज z2 एंड दिस इज z1 एंड द एक्चुअल एंगल बिटवीन देम इज थीटा, तो आर्गुमेंट ऑफ z1 by z2 इज थीटा, राइट? तो हमें पता है ये वेक्टर बन जाएगा z1 minus z2, तो मॉड ऑफ z1 minus z2 का स्क्वायर क्या बन रहा है? अगर कोसाइन रूल लगाता हूं तो ध्यान से देखो क्या बन जाएगा, मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर माइनस 2 मॉड z1 मॉड z2 cos थीटा, राइट? ये कोसाइन रूल है ना। बट वी आर ऑल्सो अवेयर दैट z1 minus z2 के मॉड का स्क्वायर क्या बन रहा है, मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 बार z2, यस और नो? ये तो हमने पहले करा है, z1 z2 बार प्लस z1 बार z2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे अगर कंपेयर करते हैं तो व्हाट डू वी सी, सॉरी माय मिस्टेक, माइनस आता है यहाँ पे क्योंकि z1 minus z2 है, तो दिस माइनस z1 z2 बार माइनस z1 बार z2, तो उसको ये लिखते थे अपन। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करता हूं तो क्या दिख रहा है, कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि मॉड z1 मॉड z2 cos थीटा, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, रियल पार्ट ऑफ z1 बार z2, ठीक है। एंड सिंस दिस लुक्स लाइक डॉट प्रोडक्ट, इसी को हम डॉट प्रोडक्ट डिफाइन कर दिए, तो z1 डॉट z2 क्या बन रहा है, तो अगर z1 और z2 तो कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो चुपचाप क्या निकाल लो, z1 बार इंटू z2 करके उसका रियल पार्ट निकाल लो, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट। समझा किसी को? ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट से रिजेंबल कर रहा है ना, मॉड z1 मॉड z2 cos थीटा डॉट प्रोडक्ट तो होता है, तो इसको डॉट प्रोडक्ट डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, z1 बार z2, या फिर एक सेकंड रुको, इसको मैं ये रुको यार एक सेकंड, z1 z2 बार लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक सेकंड देख लें दो। z1 z2 बार को अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करना है तो देखो क्या बनेगा, z1 z2 बार को ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करना है तो z इज अ मतलब दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज रिटन एज मॉड ऑफ दिस इनटू सिस ऑफ इसका आर्ग्यूमेंट ना, यही बात हुई, यही होता है ना, r सिस थीटा होता है ना, तो r ही हो गया इसका मैग्नीट्यूड और सिस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस, तो ध्यान से देखो इसका मैग्नीट्यूड क्या बन रहा है, मॉड z1 मॉड z2 के बराबर ही आ रहा है, एंड सिस ऑफ, नाउ लुक एट आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 बार, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 बार क्या हो जाता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 बार इज दिस ना, वो तो थीटा है, तो कितने बच्चों को ये दिख रहा है बोलो? So you realize z1 z2 bar is a complex number which can be written in this form. अब ध्यान से देखो इसका रियल पार्ट क्या है, मॉड z1 मॉड z2 cos थीटा, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है,
इमेजिनरी पार्ट mod z1 mod z2 sin थीटा। तो कितने बच्चों को ऐसे समझ आया कि mod z1 mod z2 sin थीटा किसके बराबर आ रहा है? वो आ रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 बार के बराबर और नॉट। और इसी को हमने डिफाइन कर दिया z1 क्रॉस z2, चलेगा? Now the idea is this is not a new complex, this is not some j-ओटा और कुछ, समझ रहे हो कि just define कर दिया कि z1 cross z2 is mod z1 mod z2 sin theta, it's a real number and it is given by imaginary z1 z2 bar। डॉट प्रोडक्ट था रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार और ये था z1 z2 बार का इमेजिनरी पार्ट। z2 क्रॉस z1 क्या हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 z1 बार, ठीक है? ऐसा। तो अगर मान लो मैं तुमसे पूछता हूं ये वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल है, z1 z2 z3 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? क्रॉस प्रोडक्ट हाफ ऑफ z1 माइनस z2 क्रॉस z3 माइनस z2, ठीक है? बट ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालना थोड़ी है, क्रॉस प्रोडक्ट तो मतलब ये निकालना है। क्या निकालना है? आंसर इज हाफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 माइनस z2 निकालो इनटू z3 बार माइनस z2 बार निकालो। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट इज द एरिया। खत्म? नहीं? लिखो इसको। एक काम करो फिर, आज के लिए इतना काफी है, अब और कुछ पढ़ा नहीं पाऊंगा।